हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, यानी जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। जो है कक्षा 9 का भूगोल का चैप्टर जो है अध्याय 5 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इसमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, जिसको आपको नोट करना चाहिए, समझना चाहिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हर समय जो है ये महत्वपूर्णता अपना बनाए रखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, विच रिलीफ फैक्टर affect the flora and fauna of India? The question is understand you, which relief factor affect the flora and fauna of India? There is an important question here. The answer, relief factor that affect the flora and fauna of India are there following way. The first way, land. The land is important here. The land is important factor. The first point here, land. According to the land, the nature of the land influence the types of vegetation. The nature of land influence the types of vegetation. This is an important point. The nature of land influenced by the type of vegetation. And second here, the fertile land is generally used for agriculture. Is a general point. The fertile land is generally used for agriculture. And third point is also important here. The undulating and rough terrains are area where grassland and woodland develop and give a shelter to a variety of wildlife. You know that there is important here. The undulating and the rough terrains are area where grassland and woodlands is developed and give a shelter to a variety of wildlife. There is an important point according to the relief factor affect the flora and fauna. The first point is land. The second factor is important here, soil. Second factor is important, soil here. The according to here a factor, first point, different types of soil provides a basis for a different types of vegetation. It is a very interesting answer. Different types of soil provides a basically therefore different types of vegetation. Smart answer here. The sandy soil of the desert support cactus and thormus bushes, and velvet marshes delticts as a soil support mangrove and deltaic vegetation. You don't already understand this point? The sandy soil of the desert support a cactus and thorny bushes. Velvet marshes deltic soil support of mangroves and deltaic vegetation. And third point is also important here. The hill slope with the some depth of a soil have a conical tree. The hill slopes with the some depth of soil have a conical tree. There is important point here. अगला 5th क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है ये, भारत के वनस्पति और जीवों में कौन से उच्चवाच कारक प्रभावित करते हैं? आखिर वनस्पति और जीवों को भारत में कौन से कारक हैं जो काफ़ी प्रभावित करता है? अब देखिए, कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी पेड़ पौधे हों, उसको प्रभावित करने वाला का सिर्फ 2 ही चीज़ होती है। एक तो उसकी भूमि, यानी लैंड कैसी है, ठीक है, लैंड करती है, और वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है। तो ये दोनों फैक्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये प्रभावित करते हैं किसी भी क्षेत्र के वनस्पति को और जीव जंतु को। कहते हैं अगर अच्छा मिट्टी की किस्म है, अगर अच्छा वहाँ उत्पाद हो रहा है, अच्छा वहाँ वेजिटेशन है, तो इसका मतलब जीव जंतु वहाँ पर फलेंगे, फूलेंगे और ग्रोथ भी करेंगे, बहुत ही जनरल रूल रेगुलेशन से। तो इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं अगर पहला पॉइंट यहाँ पर हम देखें इसी के कारण कि वनस्पति जीवों के कौन से उच्चवाच कारक प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है, भूमि, यानी लैंड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भूमि के अंतर्गत देखा जाए तो देखिए पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि भूमि की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार को काफ़ी प्रभावित करती है। हमने पहले भी डिस्कस इस बात पे किया था
कि भूमि की प्राकृतिक यानी ज़मीन देखिए जैसा रहता है, भूमि की प्राकृतिक वनस्पति को ज़रूर जो है काफ़ी प्रभावित करता है। दूसरी बात यही दर्शाता है कि उपजाऊ भूमि का उपयोग आम तौर पर कृषि के लिए किया जाता है। तो उपजाऊ अगर भूमि रहेगा तो जनरल सी बात है कि इस भूमि का जो उपयोग होगा कृषि के लिए किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो रबर, खावरा और ऊबड़ खाबड़ इलाके ऐसे क्षेत्र होते हैं, यानी ऊबड़ खाबड़ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ घास के मैदान और जंगल विकसित होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है वन जीवों को भी आश्रय देते हैं। तो भूमि देखिए कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है कि ऊबड़ खाबड़ इलाके क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर घास के मैदान और जंगल को विकास जो है खोने में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को जो है आश्रय भी प्रदान करते हैं। उसके पश्चात है दूसरा पॉइंट मिट्टी। अब देखिए मिट्टी का भी अपना महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा कि भारत में कई टाइप के मिट्टी पाए जाते हैं। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मिट्टी पे हमने विस्तार पूर्वक जाना भी कि कौन कौन सी मिट्टी पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए मिट्टी जो होती है किसी भी क्षेत्र के जीव जंतु और वनस्पति को पनपने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मिट्टी से ही जो है इनका उत्पत्ति होता है पेड़ पौधों का, और पेड़ पौधों पे ही जीव जंतु आश्रित होते हैं। तो समझ गए कि मिट्टी कितना महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं इसके पॉइंटों के ऊपर। अगर मिट्टी की बात करें तो कहते हैं पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी विभिन्न प्रकार की वनस्पति के लिए आधार प्रदान करती है, यानी विभिन्न प्रकार की मिट्टी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए आधार का काम करती है। दूसरी बात पे अगर हम देखें तो रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी कैक्टस और कटीले झाड़ियों को सहारा देती है, क्योंकि राजस्थान की बात करें रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है जहाँ पर कम जो है पानी अब्जॉर्ब करने वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो कैक्टस का नाम ही आता है और दूसरा जो है बबूल भी आती है, कटीली झाड़ियाँ सहारा देती है। जबकि गीली दलदली डेल्टाई मिट्टी जिसको मैंग्रोव भी कहते हैं, मैंग्रोव जो होती है बरसात वाले एरिया होती है, ठीक है, सुंदरबन पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है जो कि देखा जाए तो हमेशा जो है गीली और दलदली बनी रहती है, ठीक है। और डेल्टाई वनस्पति काफ़ी ये समर्थन करती है, जो डेल्टाई वनस्पति होती है ना उसका काफ़ी समर्थन करती है ये। तो इस तरह की मिट्टी में इसी प्रकार के जो है पेड़ पौधे उगना स्वाभाविक बात है। अगर बात करें हम तीसरे पॉइंट को तो ये साफ कर देता है कि मिट्टी की जो है कुछ गहराई वाले पहाड़ी ढलानों में शंखाकार वृक्ष होते हैं। अब देखिए मिट्टी की कुछ गहराई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी शंखाकार वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बन जाती है। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको ये बात सारी समझ में अच्छे से आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसमें कमेंट करना आपके फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो मुझे गलतियों का भी पता चलेगा और जो गलतियां हो रही है उसके बारे में भी आप मुझे भेजें। इससे ये होगा कि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। अगर गलतियां नहीं दिखते हैं तो आप नाइस कुछ भी लिख के भेजोगे, जिससे हमें खुशी मिलती है कि बच्चों को चलो पसंद आया, बच्चों ने देखा, बच्चों ने समझा, ठीक है। और देख के अगर आप इग्नोर कर देते हो तो ये बनाने वाले को भी जो है मन में सिर्फ दुख ही पैदा करता है कि आप देख तो लेते हो, फ़ायदा तो उठा लेते हो, लेकिन कम से कम आप एक मैसेज भी नहीं करते। चलिए ये तो था आपके लिए, लेकिन जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे 10वीं क्लास से लेके जो है BA तक आपको जो है पढ़ना है, तो ये चैनल बहुत काफ़ी आपके हेल्पफुल हो सकता है।